Hello everybody, and welcome to Tech Talk episode 2. I'm Samia from DSC Core Team, UVD Texila. Uh, I'm very excited to be here speaking to you people. I just wanted to share some knowledge. I just wanted to maybe add to your knowledge or maybe learn something from you, okay? So, you see, we never stop growing and we never stop learning, and it doesn't matter if we have or if we have never been in industry or developed something on our own, okay? Yet technology, it just keeps on evolving, and if we just don't spend time to stay up to date, we will be left behind in many ways, right? And that's why today I have decided to talk about virtual reality and augmented reality, as these two terms get thrown a lot around these days. आपने बहुत जगह ये नाम सुना होगा, right? Plus they show a lot of promise in the future, ठीक है? And future is us, so we need to talk about it. That's why I'm here now, okay? So what is virtual reality, right? So it's basically a technology, right? Now what VR does is that it makes a person feel like they're in some other place, okay? It feels like we're somewhere else. It uses some software to produce images, sounds, and other sort of sensations to create a totally different place, so that a user or audience feels like he or she is really something somewhere else, okay? uh, I remember the thing when I was back in Saudi Arabia. I just went to this mall and they launched a new 3D ride. मुझे नहीं पता था क्या था वो, so I just went क्योंकि मुझे वो राइड लेनी थी. So just I had a pair of headsets and हुआ ये था कि when the ride started, मुझे लगा मैं space में हूँ. I was falling. There was these vibrations, there was these rocks hitting me. कुछ इस तरह की राइड थी और बहुत मज़े की राइड थी, ठीक है. So but when the ride finished, मैंने अपने headsets उतारे and then I realized कि मैं तो मॉल में थी. सो उस टाइम तो नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है, बट नाउ आई नो कि वो एक वीआर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी उस राइड में. सो मुझे अच्छा लगा कि यार ये मैंने राइड तो ली हुई है पहले से, बट मुझे रियलाइज़ अब हुआ, ठीक है. सो इट हैज़ दिस अमेजिंग एबिलिटी टू फेक सिनेरियोज टू गिव अस अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, राइट. Now, what is AR, augmented reality? Okay, so it's basically a technology that overlays information and virtual objects on real world scenes, right? इन रियल टाइम. इसमें होता क्या है कि ये आपके एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में ही मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करती है और एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना देती है, ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, इट मॉडिफाइज योर एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट इनटू अ होल आर्टिफिशियल सिनेरियो, ओके. सो एक बेसिक डिफरेंस है. अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट कहूँगी और आपने उस पर फोकस करना है, ओके. सो व्हाट आई एम अबाउट टू से इज VR replaces reality and AR adds to reality. Okay, that's the key difference between VR and AR that you have to focus on. So what it means is कि VR जो है virtual reality, वो completely आपका scenario change कर देती है. For example, अगर आप एक रूम में हैं, but VR technology will make you feel like आप space में हैं या आप war में हैं या whatever type of technology you are using according to that. बट AR जो है वो सिर्फ आपकी रियल टाइम में एडिशन करेगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रूम में हैं तो वो उस आपके रूम में ही फंक्शनैलिटी और फीचर्स ऐड करके आपको मज़ीद एक अच्छा आउटपुट देगी एंड यू विल फील लाइक कि रूम वही होगा आपका, बट देयर विल बी डिटेल इन योर रूम, ठीक है. तो साम्या, सो आप ये इसकी बताएं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, इट हैज़ अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी, आई फाउंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. बट क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइमली इवेंट है, तो मैंने सबसे 5 इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस आपके लिए मैंने इसमें कलेक्ट की. सो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री की, राइट. वर्चुअल रियलिटी की मिलिट्री में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. ओके, वन ऑफ द मेन थिंग्स वर्चुअल रियलिटी हैज़ अकॉम्प्लिश्ड सो फार इज providing safety in military training, right? You see, safety is something that every country, every nation is concerned with. So what they basically do is they recreate the military environment that looks very similar to a real one, but it is 100% controlled, okay? So in case of any mishap, in case of any accident, in case of any mistake, the soldier stays safe, right? So you see, it promises a lot of safety. Plus, the VR devices have these special sensors to record the feedback of the activity of the soldier. जो सोल्जर होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है.
and then because they have their performance recorded precisely, it helps them to further work on their personal skills, right? जहाँ जहाँ वो soldiers lag कर रहे होते हैं, so they know कि हमने कहाँ कहाँ से practice करनी है, and they can train in a better way. So yeah, and they also have these VR guns to train them with shooting skills, while it helps them, the military, to cut down their equipment cost. आप में से किसी ने अगर वो सीरीज देखी हो 13 Reasons Why, has anyone of you watched it? 13 Reasons Why. I have. Yeah, so you must have you must have वहाँ पे एक सीन था कि there was this active shooter drill, और क्ले जेंसन जो था, he just lost it. वो उस सिनेरियो को रिस्पॉन्स बिल्कुल। नहीं कर सका ठीक से, एंड वो जो शूटर होता है वो उसको गन से शूट भी करता है, बट ही डजंट डाई बिकॉज द गन, वो शूटर जो गन यूज करता है, इट वाज अ वीआर गन, और दैट वाज अ कम्प्लीटली फेक वीआर सिनेरियो. स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में एक्टिव शूटर्स आ गए हैं. अगर आपने वो सीरीज देखी है, देन आपको ये चीज़ ज़रूर अभी रियलाइज़ हुई होगी कि वहाँ पे भी इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, राइट? सो I'd like to add something. या एंड देन दे हैव. जी. मिलिट्री में ही सिमुलेटर्स भी होते हैं. सो व्हाट आर बिल्कुल. सिमुलेटर्स? दे सिमुलेट एक तो ट्रेनिंग का बता दिया सामने कि द सोल्जर्स दे ट्रेन यूजिंग द virtual reality or augmented reality, but they make simulators for vehicles such as tanks or helicopters. So imagine that you're a beginner and you're learning to drive a car. So you won't just go and take a high-end Mercedes S-Class or something and try to learn on that, because there are high chances of you crashing that vehicle. So when it comes to helicopters and tanks, these are very, very specialized and dangerous vehicles, and especially if they're military related. So training Yeah, on they have these. Yeah, they have these VR simulators to make them feel like they are in tanks, or they are in trains, or they are in ships and submarines, to just train them for tougher scenarios. So जब ये actually वो इस scene में होंगे, they will know how to respond. अब ये जो रिसेंटली पिशावर में मदरसा इंसिडेंट हुआ, सो यू सी इफ द चिल्ड्रन, दे वर टॉट बाय सम टेक्नोलॉजी टू यूज द, to train the students to how to respond in such scenarios, it might have helped save lives, right? And because VR training is also game like, so the soldiers find them more enjoyable, because I think boys love video games, so it's just like a video game. So it's just like they enjoy doing it, right? So it's just, okay, it adds to their military training. It prepares them for better wars and for better results, for success. Okay, now I'll be talking about augmented reality in medical field. Okay, so medical field has some really mind-blowing uses of VR. All of you must have heard about the CT scan, right? और सर्जरीज में AR VR का एक बहुत इफेक्टिव रोल है. सो यू सी, ये जो मिडल ईयर सर्जरीज होती हैं, न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं, और ये जो सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, दीज आर वेरी टफ. ओके, सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ मिडल ईयर सर्जरी. So the traditional middle ear surgery से क्या होता है कि during surgery you might have a chances of bleeding into the middle ear. There was a lot of risk to the membrane injuries, and there was a lot of critical a lot of critical care to be taken for several days, and it was a very difficult process. But with the help of AR technologies, what happened is it was able to access the middle ear structures through a tiny puncture sort of a thing in the ear membrane. Okay, so this procedure had many advantages over the traditional surgery, that it was a faster route, the membrane remained safe, we had less chances of bleeding, and we had definitely lesser pain, and ऑपरेशन के बाद द केयर, इट वाज आल्सो वेरी इजी, राइट? सो ये सब एआर के थ्रू ऐसे अचीव किया गया कि दे कंबाइंड द सीटी स्कैन. उन्होंने मिडिल ईयर का सीटी स्कैन और जो रियल टाइम माइक्रोस्कोपिक वीडियो होती है ईयर की, बिकॉज ईयर बहुत छोटा पार्ट होता है, एंड उसके अंदर विजुअलाइज करने के लिए दे यूज सम माइक्रोस्कोपिक वीडियोस एंड माइक्रोस्कोपिक बेस. सो उन्होंने उसको कंबाइन किया इनटू एन ऑगमेंटेड रियलिटी फ्रेमवर्क. और इसी तरह इट ऑल्सो हेल्प इन आई सर्जरीज,
neurological surgeries, and complex treatments. It became really easy in the medical field, okay? And another mind-blowing example I'm going to give you is the phantom pain. Has any one of you ever heard of a phantom pain? Anybody of you? No. Okay, so no. Okay, so phantom pain is a pain, obviously, and it feels like it's coming from a body part that's no longer there. Okay, I mean, let me just explain. For example, you don't have a leg, okay, and you feel a pain in your leg as if the leg was there. Can you imagine that? Right? But it does happen with physically challenged people, right? So phantom pain is a poorly understood phenomenon. लोगों No, को लगता है कि so ये सिर्फ Samya, you mean psychology. that uh, I don't have, let's suppose I meet an unfortunate accident and I lose one of my Mm-hmm. limbs, let's suppose my arm. And Yep. so if I gather what you're saying, what I understand is that I have a pain or an irritation in a body part that does not exist for me at least. Yeah, if you just lost your arm, but it might happen with you that you feel a pain in your arm or you feel an itching sensation in your arm, right? It looks weird, but it does happen, right? So people think that this is a psychological state. Maybe it's a mental disorder, but no, because आपने अपना limb तो lose कर लिया, you lost your arm, but you have the muscles जो आपका arm control करते थे, right? You have those nerve transmissions जो आपका arm control करते थे. So it gives signals, and you feel like you feel a pain in your arm, you feel a pain or itching in your whatever limb you have lost, okay? So what happens is our brain just gives this real sensations, and it's actually our spinal cord doing it. It's not a psychological problem, right? So this sort of a pain was recovered with the help of augmented reality, because you see it's quite disturbing for patients because they can't physically cure it. You see, I mean, how can you cure a leg pain if you don't have a leg, right? Okay, let's make it even worse now. Imagine feeling itches on your leg and you don't have a leg. Phantom itches. I mean, how disturbing it might be feeling, right? So these kind of sensations are cured using an augmented reality equipment, and there are some special sensors attached to that specific body part. So it reads the muscles, okay? जो muscles हमारे उस specific body part को control करते थे, it reads the muscles, the one that used to control the body part, and then displays a virtual body part on the screen, right? हमारे सामने एक screen होती है, और उसके आगे जो हमारे सेंसर्स लगे होते हैं बॉडी पे, वो उस स्क्रीन पे एक वर्चुअल बॉडी पार्ट डिस्प्ले कर देते हैं, राइट? एंड बाय लुकिंग एट द स्क्रीन we can simply scratch our leg, we can scratch our hand or whatever limb it is, and we can, it always helps to recover or get through the struggle, right? And this method, it seems weird, but it has proven to be very helpful for people with such disorders, right? And it was one of the very good examples, I thought, so I just had to share this with you. Okay, sir, I'll just complete what I was saying. तो इस तरह से जब आपको खुजली हो रही होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप वही पार्ट खुजा रहे हो, वही लिम्ब खुजा रहे हो, तो वो आपके बिलीफ को सेटअप इस तरह से कर रहा होगा कि आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो इस वजह से वो ख़त्म हो जाता है फिर. तो इस तरह से कोई इसकी एप्लीकेशन है, इस पे काफ़ी थीसिस लिखे जा रहे हैं आजकल. So virtual reality in constructions, augmented reality and virtual reality also have their role in construction, and it has the specific augmented frameworks inside the construction sites that lets you see through walls, okay? I mean, that's cool, isn't it? So it lets you see through walls somehow, and it lets a constructor see easily and to look after the processes going behind the wall, because the construction sites, they need check and balance every single minute, every single time. So it's just a huge facility for the constructors, so they can just look through walls, and they can just check on everything easily. And there is this augmented reality gear which can measure objects' physical properties like height, weight, width, depth, and the construction companies, what they do is they just incorporate this data to make models and even more accurate structures, right? Which gives the company a more better insight of what the project is going to look like. So if you have, अगर किसी company के पास ये augmented reality gears हैं,
सो इससे क्या होगा कि वो जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बिकॉज कंस्ट्रक्शन से पहले दे हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स जिसमें सारे स्टेट्स लिए जाते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी डेप्थ क्या होगी. तो इट हेल्प्स द कंस्ट्रक्शन कंपनीज अ लॉट टू डिजाइन अ precise project, a precise model, right? And all of you must have heard about 3D modeling, right? So basically three dimensional modeling करते हैं हम चीज़ों की, जो भी चीज़ हमने launch करनी हो market में. So the virtual reality is kind of next level in 3D modeling, right? So 3D modeling, it involves a detailed virtual model of a project. So you see every building design is different, car designs होते हैं, technology designs होते हैं, and VR and AR give this amazing prop in construction field as well, right? So if a specific company is using these technologies, teams on the opposite side of country can also walk through a site together and examine the details in real time, right? So ऐसा भी होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा और दो से ज़्यादा कंपनीज उसके ऊपर काम कर रही हैं, और एक कंपनी इस्लामाबाद में है, एक कंपनी कराची में है, सो वो मिल के कैसे कोलैबोरेट करेंगे? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो मिल के एक साइट को स्टडी करें. बट वर्चुअल रियलिटी टूल्स हैज मेड इट रियली इजी कि वो विदाउट बीइंग फिजिकली टुगेदर दे कैन स्टडी द साइट टुगेदर, राइट? इजंट इट कूल? Okay. And education also has a lot of virtual reality roles जो कि अभी इतने ज़्यादा implement नहीं हुए, but if they do, सबने top करना, ठीक है? So first of all, imagine inside a classroom and you feel like you're at the top of Mount Everest, right? Sending a whirling tornado through the desks, or मे बी एक लावा है, टीचर को उठा के उसके अंदर फेंक दो. आई मीन यू कैन डू एनीथिंग विथ वर्चुअल रियलिटी. ओके. So you can, it helps the students to share their experiences, to share their stories. And virtual reality and augmented reality, you see, they add a new dimension to the curriculum. And I believe कि अगर इसको education में normalize किया जाए, तो I think this can't get any better than this. Because with yeah, because you see, अगर हम एक चीज़ को visualize करते हैं ना, it enhances the learning, right? Skills to 90 up to 90% ये हमारे skills को enhance करता है. हालांकि अगर हम कोई लेक्चर सुनते हैं या हम कोई लेक्चर देखते हैं, वी लर्न 30 to 20%. बट अगर हम एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, if we are in the scenario ourselves, then we learn the thing up to 90%, right? हमें उस चीज़ की 90% डिटेल्स याद रहती हैं. डेफिनेटली अ बिग येस फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस, क्योंकि मुझे 5 मिनट का गाना याद रहता है, बट मुझे सर का दिया हुआ कंसेप्ट भूल जाता है, ठीक है? सैड लाइफ. तो मुझे लगता है कि अगर ये एजुकेशन में इस चीज़ पे यूज़ किया जाए, तो इट्स अ बिग येस फॉर स्टूडेंट्स. और definitely helps student to perform better, definitely helps the student to make their future in a better way, right? And yeah, virtual reality has also helped to eliminate the language barriers. Okay, somehow in the future, maybe आप किसी ना किसी रीज़न की वजह से अगर आप abroad travel करते हैं, maybe for a trip, maybe for educational purposes, maybe for conferences or seminars or anything. So you see, you have this multicultural societies, you have people from all countries, and at higher education levels, language difference, it can be significant challenge for the student, right? So language translation is one of the features that could be easily built into the software of VR. So this allows a VR classroom realize the potential and experience and share experiences with everybody, because अगर एक VR classroom है and you have students from all countries, all nations, how will you communicate? So VR gives you this ability to interact with people of all languages, all countries, and it eliminates the language barriers, okay, and the difficulties that might come from learning in a foreign language, right? अगर आपके किसी के फॉरेन पढ़ने के plans हैं, then I think you should study about this, okay? And is Talha back yet? Yes, Talha. Assalamu alaikum. Are you there? Yes, I am back. Thank you, Samya. I'll talk a little about a medical application as well. तो मैं गया था, हमारी आई थिंक ऑडियंस सारी पाकिस्तान से है, तो आई थिंक आई कैन स्विच टू उर्दू विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. तो हाँ, ठीक है. तो मैं गया था IEEE का, आपने नाम सुना ही होगा,
एक सोसाइटी है इंटरनेशनल स्केल की, और यहाँ यूटी टेक्सला में भी है। तो उनका एक इवेंट था लाहौर में, 2 से 3 दिन का था, यूईटी लाहौर में। तो मैं वहाँ गया था, और वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसके अंदर ना फेसबुक डेवलपर सर्कल एक कम्युनिटी है, उधर उसके लोग आए हुए थे, और उनके साथ एक स्टार्टअप आया हुआ था पाकिस्तानी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो लम्स के थे स्टूडेंट्स या फास्ट के थे, लेकिन इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से थे। तो उनका स्टार्टअप का काम क्या था कि वो क्योर करते थे अम, मुनीब, जो वो होती है मेमोरी लॉस, उसे क्या कहते हैं? एमनीजिया कहते हैं, या वो स्लीप लॉस होता है? मैं सर्च कर लेता हूँ एमनेशिया। हाँ, आई थिंक यू एग्जैक्ट वर्ड। कंटिन्यू विद एमनेशिया, अगर मैं फैक्ट स्ट्रेट करके मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एमनीजिया ही होता है, ठीक है। सो एमनीजिया जो है ना, उसको क्योर करने का उनने एक तरीका निकाला। अब नॉर्मली एमनीजिया को आप क्योर कैसे करते हैं? अगर कोई बंदा एकदम से उसकी, हाँ थैंक यू ईमान, इंसोम्निया इज स्लीप लॉस, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा था जब हम डिस्कशन कर रहे थे टीम, तब भी थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। सो नॉर्मली एमनीजिया को किस तरह क्योर किया जाता है? अब एक बंदा, उसकी मेमोरी सारी वाइप आउट हो गई, उसको कुछ याद नहीं आ रहा, तो उसको ना वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, उन लोगों से मिलवाया जाता है, और उस इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, या फिर जहाँ पे उसने सर्टन इमोशंस फील किए होते हैं। लेट सपोज उसकी कहीं पे शादी हुई है, तो उसको वहाँ वो उस जगह लेके जाएगा। सो दैट इज़ अ रियली बिग थिंग ना, बिग मोमेंट इन लाइफ। अगर उसने किसी स्कूल में सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो um, हाँ, क्वेश्चंस के सारे आंसर्स ना हम आंसर करेंगे, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, एंड में आप लोग अपने माइक्स भी ऑन कर सकेंगे तब। अभी लेकिन आप ना अपने चैट बॉक्स में लिखते जाएं ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। खैर, तो उसको ना इस तरह क्योर किया जाता है कि ना उस बंदे को वो चीज़ें एक्सपीरियंस की करवाई जाती हैं जो वो पहले अपनी ज़िंदगी में करता रहा है, ताकि हो सकता है उसके दिमाग में कोई चीज़ ट्रिगर हो और उसकी मेमोरी वापस आना शुरू हो जाए। तो लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि पेशेंट को इधर उधर लेकर जाना और उस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट दे वर वर्किंग ऑन कि वो वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करते थे, और उसमें उनको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में डाल देते थे। यानी ख़ुद 3D उनने एक जगह क्रिएट की हुई है, और वो बंदे को नज़र आ रही है, और वो उस जगह को देख रहा है, वो वाली आवाज़ें उन लोगों से मिल रहा है। तो वो एक ऐसा, वो ना उस बंदे की कंडीशन के हिसाब से स्पेसिफिक उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे, और उसको वो एक्सपीरियंस करवाते थे। उससे क्या होता था कि उन्होंने जब टेस्टिंग काफ़ी सारी की, मेरे और आप जैसा ही स्टूडेंट था एक, वो शायद हमसे कुछ साल पहले जो है वो ग्रेजुएट हो गया हो, तो वो उन लोगों को वो चीज़ एक्सपीरियंस करवाते थे, और उनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आ रहे थे, लोग रिकवर करना शुरू हो रहे थे। सो दिस इज़ अ रियली ग्रेट अचीवमेंट एंड गुड एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। और कुछ लोगों को वीआर और एआर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है और कि ये होता क्या है। तो आई थिंक जब हम गेमिंग और एंटरटेनमेंट पार्ट पे आएंगे ना, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ कि क्या होता है। पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एम और पर्पस ऑफ गेमिंग और एंटरटेनमेंट इन जनरल। अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट इन जनरल, सो its sole purpose is to provide an experience to a person that is enjoyable. And how do we achieve that experience? We achieve that experience by increasing immersion of that person in that experience. यानी उस बंदे को उस एक्सपीरियंस में कितना ज़्यादा, इमर्जन को क्या कहेंगे उर्दू में, कह लो कितना वो घुस जाता है उस चीज़ में। तो लेट्स स्टार्ट आउट सिंपल, लेट्स टेक अ बुक। अब आप एक बुक पढ़ते हैं, सो द राइटर और ऑथर यूजेस इमेजरी। तो अगर किसी बुक में बहुत अच्छी इमेजरी यूज़ हुई हुई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो उसका मेन कैरेक्टर की शक्ल कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं, वो चलता कैसे है, वो बात कैसे करता है। आप उसका एक्सेंट भी इमेजिन करते हैं आपके दिमाग में, यानी पूरी फिल्म चलना शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाट अ रियली गुड book does. So it uses imagery in such a fine way that the whole you can feel the whole book. So you're immersed into that book. Now take it up a scale.
सो ये तो हमने इमेजिन करके अपनी ताकत इस्तेमाल की. नाउ इफ़ यू गो टू अ मूवी, राइट, सो अ मूवी हैज़ साउंड्स, अ मूवी हैज़ इमेजेस. तो सो उससे क्या होता है कि अगर उसके अंदर साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा किया गया हो, उसके अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत अच्छी की गई हो, तो आपको कभी कभी लगता है कि आई एम इन द मूवी, आई एम एक्सपीरियंसिंग द इमोशन. लेट्स सपोज एक इमोशनल सीन आ गया है, ठीक है, अगर द फ्लैश मैं देख रहा हूँ और फ्लैश की जो अम्मी है वो, पेरेंट्स जो है वो मर जाते, अम्मी मर जाती है, अबू जो है वो जेल चला जाता है, तो अगर वो मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है तो आई माइट एंड अप क्राइंग, यू नो, फीलिंग दैट इमोशन दैट guy Barry Allen is experiencing. So that is how immersive a movie can be. Now let's take it another step further. तो पहले तो हमने बुक पढ़ी, हमने अपने दिमाग में इमेजिन किया, फिर हमने मूवी देखी, हमने सब कुछ देख के फील किया, एब्जॉर्ब किया. अब हम गेम में आ गए. गेम में क्या हो रहा है? गेम में हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम उस बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं. तो दैट इज़ अनदर, दैट टेक्स इमर्जन टू अनदर लेवल. वो और बढ़ती जा रही है, यानी हम फील कर रहे हैं ना कि हम बंदे को चला रहे हैं, इधर हमारे बंदे ने ये किया, राइट. तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी इस इमर्जन को कैसे बढ़ाती है? वो इस तरह बढ़ाती है कि आपको लगता है कि आप ही वो बंदा है, राइट. आप अपना सर हिलाएंगे तो आपका बंदा सर हिला रहा है. मतलब जैसे अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी लेट्स सपोज खेल रहे हैं. अब मुझे नहीं पता कॉल ऑफ ड्यूटी में आई डोंट थिंक वीआर है, लेकिन लेट्स सपोज एक कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप गेम है, उसमें वीआर है सपोर्ट. तो आपने सारी इक्विपमेंट वीआर वाली लगाई हुई है. वीआर में बाय द वे सेंसर्स होते हैं, कैमराज होते हैं, हेडसेट जो प्राइमरी जिसके थ्रू आप देख रहे होते हैं. हेडसेट क्या करता है कि वो आपको इस तरह दिखाता है कि आपकी वो स्क्रीन कर्व हुई होती है, लेंसेज के थ्रू वो कर्व कर देता है डिस्प्ले, तो आपको सब पूरा आपको हर तरफ नज़र आ रहा होता है. तो यू रियली इन टू दैट, आपको लगता है कि आप उस इन्वायरमेंट में चले गए हैं. तो लेट्स सपोज वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है और आपको कॉल ऑफ ड्यूटी ने वर्ल्ड वॉर 2 में डाल दिया, तो यू विल फील कि आपके राइट पे एक बिल्डिंग है, आपके लेफ्ट पे एक बिल्डिंग है. आप सर हिलाएंगे तो आपको राइट तरफ सर हिलाएंगे, आपको राइट वाली जगह नज़र आएगी. लेफ्ट पे हिलाएंगे, आपको लेफ्ट वाली जगह नज़र आएगी. आप अपनी टांगें हिलाएंगे तो आप चलना शुरू कर देंगे. आप अपने हाथ हिला के हाथ की तरफ देखेंगे तो आपका गेम में कैरेक्टर भी हाथ ऊपर करेगा. सो दिस इज़ हाउ वी आर इंक्रीजेज इमर्जन. सो जितनी ज़्यादा इमर्जन आपकी बढ़ती है एक इंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस में, उतना ज़्यादा वो इंजॉयबल हो जाता है. तो उसके अलावा फिर जो आपके कंट्रोलर्स होते हैं वो भी इस तरह के आना शुरू हो गए हैं ताकि वो बिल्कुल अडेप्ट करें इस चीज़ को. अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कल या आज सुबह की बात है, और ना ये नहीं कि मैं इस इवेंट के लिए देख रहा हूँ, मैं वैसे ही देख रहा था. और उसमें मैंने क्या देखा, एक नए टाइप का कंट्रोलर है. वो करता क्या है कि उस वीडियो में ये था कि एक बंदा है, उसने हेडसेट पहना है, वो चल रहा है और उस नीचे एक बास्केट है और ऊपर दरख्त है, उसमें एप्पल्स लगे हुए हैं. वो हाथ करके ऊपर करके एप्पल को पकड़ता था ना, तो उस कंट्रोलर के अंदर एक ऐसी किसी ने अभी रोबोटिक आर्म्स की बात की थी कि क्या वो वीआर में इंक्लूडेड हैं, तो हाँ वो इंक्लूडेड है. वो किस तरह, वो बंदा हाथ ऊपर करके एप्पल को पकड़ता था ना, अब वो एप्पल असल में तो नहीं है ना, असल में वो तो अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा है, उसको तो सिर्फ नज़र आ रहा है कि एप्पल है, लेकिन वो कंट्रोलर उसकी रिस्ट के साथ लगा हुआ था और उसके ऊपर एक गोल सी चीज़ थी. उसने ऊपर करके एप्पल पकड़ा और वो गोल सी चीज़ उसके हाथ में आ गई, तो उसको फील तो यही हुआ ना कि उसने एप्पल कुछ पकड़ा है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फर्दर इंक्रीज इमर्जन के आपको ज़्यादा चीज़ें फील, ज़्यादा सेंसेस आपके एक्टिवेट किए जाएँ. उसने वो एप्पल पकड़ के नीचे बास्केट में फेंका तो वो उसके हाथ वो चीज़ खुद ही पीछे हो गई. फिर उसने बास्केट पकड़ी तो उसके दोनों हाथों में वो जो रोबोटिक आर्म था वो आ गया, तो उसको फील हुआ कि मैंने बास्केट पकड़ी हुई है. तो इस तरह आप बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा ना कुछ मॉल्स होते हैं, उनमें एक चीज़ आई हुई है और ये सेटअप काफ़ी महंगा होता है, लेकिन आप ले भी सकते हैं. इसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद, लेकिन उसमें नीचे एक ट्रेडमिल लगी होती है और ये ट्रेडमिल किसी भी ट्रेडमिल तो नहीं होती, लेकिन उस तरह की फीलिंग आती है. तो वो आपकी ना जो वेस्ट होती है उससे आपको अटैच कर देता है और आप किसी भी डायरेक्शन में मूव होकर आप लिटरली उसमें भागते हैं, जैसे ट्रेडमिल में भागते हैं ना, और वो गेम डिटेक्ट करती है आप कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं और वो गेम में आपको डाल देती है. तो आपकी गेम में बंदा उतना ही तेज़ी से भागेगा जितना आप तेज़ी से भाग रहे हैं. तो इतनी ज़्यादा इमर्जन बढ़ चुकी है और वर्चुअल रियलिटी जो है इतनी ज़्यादा आपको वो एक एक्सपीरियंस दे सकती है. तो गेमिंग में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है.
लेकिन इसके कुछ इश्यूज अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारी टॉक ये थोड़ा सा सेक्शन बढ़ा जा रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें मैंने कुछ और चीज़ें भी डिस्कस की हैं, तो आई होप यू गाइज डोंट माइंड। जो चीज़ मैं डिस्कस अब करना चाह रहा हूँ वो ये है कि VR तो हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी, हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। सामिया ने बताया था हमें कि वर्चुअल रियलिटी क्या करती है, हमें एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में डाल देती है और हमें फील होता है कि हम उस इन्वायरमेंट में ही हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी ये करती है कि हमारे एक्चुअल इन्वायरमेंट में, यानी मेरे कमरे में, वो उठा के कोई आर्टिफिशियल चीज़ डाल देगी। सो द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस दैट इज़ गो एंड प्ले पोकेमॉन गो। मैंने खुद कभी नहीं खेली पोकेमॉन गो, लेकिन मैंने और AR गेम्स खेली हुई हैं। जो सबसे पहले AR गेम थी वो मैंने आज से 6-7 साल पहले खेली थी, और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि AR क्या होता है, लेकिन मैंने बहुत पहले खेली थी। मैं और वो एंड्रॉयड पर आई डोंट थिंक है, मुझे उसका नाम भी अब याद नहीं। पर मेरे पास ना आईपैड होता था, बहुत पुराना iPad 2 था शायद तब। तो उसमें एक गेम थी, उसमें क्या था कि एक गाड़ी है टोयोटा 86, उसको सुबारू BRZ भी कहा जाता है, सुबारू की रीब्रांडिंग में भी आती है, और आई थिंक एक और नाम से भी आती है, सायन कंपनी है, या पता नहीं किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, SCION, उनकी भी तकरीबन इस जैसी गाड़ी आती है। तो था क्या उसमें कि ना एक आपने कार्ड प्रिंट करना था। मेरे पास प्रिंटर नहीं था उस वक्त, मैंने अपने फ़ोन के ऊपर जो है ना वो तस्वीर निकाल, वो कार्ड खोल लिया, और मैंने अपना आईपैड जो है ना उसका कैमरा उसकी तरफ किया। तो हुआ क्या कि उसने उस कार्ड को डिटेक्ट किया मोशन ट्रैकिंग के लिए, ताकि यानी जहाँ पे कार्ड हो वहाँ वहाँ पे मेरा AR कंटेंट जनरेट, और उसने उसके ऊपर ना एक रेस ट्रैक बना दिया। अब मेरे कारपेट के ऊपर एक रेस ट्रैक है, और उसके अंदर मैं एक गाड़ी चला सकता हूँ, जो कि असल में वहाँ नहीं है, लेकिन मैं अपने कैमरा के थ्रू देख रहा हूँ कि मेरे कारपेट पे मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ। तो दिस इज़ एन AR एक्सपीरियंस। शाहजेब ने मेंशन किया कि स्नैपचैट फ़िल्टर्स वो भी AR के ऊपर ही काम करते हैं, वो आपके फेस को देखते हैं और जो फ़िल्टर होता है ना वो मैप कर देते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ करके। लैशेस लगा दी, मेकअप लगा दिया, कैप लगा दी। तो दैट इज़ अनदर AR एक्सपीरियंस। आप लोगों सब ने यूज़ किया होगा, और जिनने नहीं यूज़ किया आप लोग स्नैपचैट डाउनलोड करें, उसको ट्राई करें कि फ़िल्टर्स कैसे काम करते हैं। नाउ कमिंग टू हाउ यू कैन एक्सपीरियंस AR और VR। तो उसके अगर आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो आई शो यू, आई क्विकली शो यू दिस इमेज, और इसके अंदर एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट है। तो सामने आई एम गोइंग टू टेक ओवर फॉर अ मिनट। हाँ, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, कंफर्म कर लें काइंडली। Yes, we can hear you. और ये कंपैरिजन टेबल आपको नज़र आ रहा है? नो, हमें सिर्फ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने शेयर किया है। सामने आप अपना जो है शेयरिंग ऑफ काइंडली करें ज़रा। वैसे नहीं, मेरी शेयर हो रही है, आप लोगों को भी आ जाएगा नज़र। देखें ज़रा, कंपैरिजन टेबल एक है। I can see the comparison table. ओके ग्रेट। तो हम देखते हैं कि हम VR या AR को किस तरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस इज़ प्राइमरली टारगेटेड टू VR AR एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर शायद कुछ ऑप्शंस में हों, कुछ में ना हों, और उनके मॉडल्स पे भी डिपेंड करता है। बट लेट्स सी। जो सबसे सस्ता है ना वो है गूगल कार्डबोर्ड। ठीक है, वो 20 से $30 का होता है, लेकिन यू कैन फाइंड इट फॉर वे चीपर एज वेल। मैं गया था डॉलर्स शॉप पे, और वहाँ पे मुझे 100 रुपये का मिल गया था कार्डबोर्ड वाला हेडसेट। तो वो क्या होता है, वो गत्ते का बना होता है, उसके अंदर लेंस लगे होते हैं, और कार्डबोर्ड में सिर्फ एक बटन होता है। तो उसमें आप अपना फ़ोन स्लाइड इन करते हैं, एंड यू कैन सी इन द यू कैन एक्सपीरियंस VR इन 3D, और आपको सारा नज़र आ रहा है। अपना सर हिलाएंगे तो आप राइट साइड पे, मतलब वो सारे VR वाले बेसिक एक्सपीरियंस गूगल कार्डबोर्ड में आपको मिल जाता है। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, जितनी हाई रेजोल्यूशन आपके फ़ोन की स्क्रीन होगी उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो इफ़ यू हैव अ 720p स्क्रीन जो फुल HD नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इट विल बी अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, और ना हो सकता आपको मोशन सिकनेस शुरू हो जाए। 1080p पे गुजारा करता है। 1080p से ऊपर हो, लेट्स सपोज 1440p हो, तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। फिर ये जो LG 360 VR तक की जो 5 ऑप्शन है ना, गूगल कार्डबोर्ड, होमिदो,
Zeiss VR1, Gear VR, LG 360 VR, ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं ये हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए। तो मोबाइल फ़ोन आप अपना इसमें डालते हैं और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे कोई वर्चुअल रियलिटी कंटेंट चल रहा होता है और आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने इनमें से सिर्फ गूगल कार्डबोर्ड ट्राई किया हुआ है और गेयर वीआर यूज़ किया हुआ है। गेयर वीआर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि सैमसंग के जो फ़ोन्स होते थे ना फ्लैगशिप, उनकी स्क्रीन भी 1440p यानी HD+ होती थी, फुल HD+ होती थी। तो उसमें भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने टेम्पल रन खेली थी और एक दो और गेम्स खेली थी, तो वो फुल 3D में आप अपने पीछे भी देख सकते थे कि बंदा भाग रहा है, बंदे के पीछे क्या नज़र आ रहा है, आगे क्या नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। अब कमिंग टू द मोर एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस, प्ले स्टेशन VR, ऑकुलस रिफ्ट और HTC वाइव। प्ले स्टेशन VR एक हेडसेट है, शायद इसके साथ कुछ सेंसर्स भी होते हैं। ये सिर्फ प्ले स्टेशन के साथ चलता है और ये स्टार्ट हुआ था प्ले स्टेशन 4 में। तो 4 स्लिम, 4 प्रो और 5 जो भी आ रहे हैं ये उसमें चलेगा। ऑकुलस रिफ्ट और HTC वाइव PC के लिए हैं और इनकी आप कीमतें देख रहे होंगे, $400, $600, $800। तो पाकिस्तान में ये आपको मिलेंगे तकरीबन 1.5 लाख के, 1 लाख 1.5 लाख के दरमियान मिलेंगे। तो ये बहुत महंगे हैं और इनको पावर करने के लिए जो पीस कंप्यूटर आपको चाहिए होगा ना, वो भी अच्छा खासा लाख तक का शायद आपको पड़े या उससे ऊपर का पड़े। तो जो एक प्रीमियम VR एक्सपीरियंस है वो काफ़ी महंगा भी होता है। तो लेकिन आई वुड रियली रिकमेंड कि आप किसी डॉलर स्टोर पे जाके गूगल कार्डबोर्ड ढूंढने की कोशिश करें, और अगर आपको नहीं मिलता ना, आप खुद अपना बनाने की कोशिश करें। बस लेंस ढूंढना शायद, और मैग्नेट लेंस ढूंढना मुश्किल होगा बस आपके लिए, बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। 45mm फोकल लेंथ का लेंस बाय कॉनकेवो, तो वो दो अगर आपको मिल जाएं और आप गूगल करेंगे ना गूगल कार्डबोर्ड, तो उसमें आपको सारी गाइड मिल जाएगी कि आप किस तरह बना सकते हैं। गूगल की अपनी गूगल कार्डबोर्ड वेबसाइट पे ही आपको गाइड मिल जाएगी कि किस तरह गूगल कार्डबोर्ड आप बना सकते हैं, कहाँ से ख़रीद सकते हैं अगर ख़ुद नहीं बनाना। सो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस दैट आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई। और with that I think I'll stop. I've gone on too long for on the entertainment topic, so we can discuss more about careers in AR and VR. Samay, you can share your screen now again and we'll continue with this talk. Thank you, Samay. All right. Am I hearable? Yes, you You are are. audible. Yeah. Okay, so talking about how we can pursue a career in AR and VR. Okay, so there are some basic steps and there are some basic things to keep in mind. First of all, what we do is we just define our platform. Okay, we have to decide which devices do we have to target, which platforms do we have to target. Do we have to target mobile? हमने मोबाइल पे काम करना है, हमने डेस्कटॉप पे काम करना है, हमने वेब पे काम करना है, या हमने गेम इंजन कौन सा यूज़ करना है, या which software development kit do we have to use, या which framework do we have to use. We have to define this platform, okay? And then we have to learn the skills. And about skills, we have to learn the terminology, we have to learn about 3D modeling, we have to learn the language of the engine that we are using. वो engine जो हमने अपने platform के लिए decide किया है, we will be have to learn the language of that engine. We will be have to learn the language of the software development kit we will be using, and then we will learn the language of the framework we will be using, because we have multiple frameworks, multiple engines, and multiple SDKs. Okay, so we will have to decide first which one of the specific framework or engine we are using, and then we will have to learn their specific language. We will have to learn the UI and UX. Okay, AR and VR के लिए UI and UX learning is a requirement. And then after you've learned all those skills, after you've collected these skills, you just implement something small. Okay, because you see there are a large number of AR and VR apps, games, and there are a lot of areas that can be targeted as well. Okay, you can target education, you can target data visualization, you can target 360 degrees experiences. The key is to practice and gain experience. Okay, आप कोई छोटा सा, जब आपके पास skills आ जाएंगे, you will just create a small project, you will just implement something small, you will work on something small for the sake of experience, for the sake of exposure. Okay, and when you feel like you have enough knowledge, you have enough experience, you have enough skill, you can join and engage in a VR community. You have to go through, you have to
to go to meetups, you have to participate in forums, you have to participate in contests, and then you have to participate in chats, talk to other developers, and then you can ask your community. जो भी आप community join करेंगे VR AR से related, they will have these sessions, they will have these activities which will give you more exposure to this field, and that's how you will pursue a career in AR VR. Okay. So yes, that was from my side today. I hope I was able to teach you something. So you people might have got the idea that these technologies, they have some really mind-blowing uses, right? But they have yet to be made common. ये भी इतनी normalized नहीं हुई हैं. And they show a lot of promise as well, right? So they can completely change how we use computers in the future. But which one of these overtakes the other? AR ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आएगी या VR ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आएंगी, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड. सो इट्स ओवर इंटरेस्ट कि हम AR पे काम करते हैं, VR पे काम करते हैं, हम इसको किस तरह से परस्यू करना चाहते हैं, राइट?